Early morning in late January, footage released by the Home Office shows almost 50 people being loaded onto a government deportation flight. Half are foreign national offenders, and some who pose a higher risk have been restrained as they're led on board. The rules really need to be respected and enforced for the asylum and immigration system to work. That's why since the election, we have been increasing returns, so 19,000 people who have no right to be in the UK have now been returned, and also increasing the illegal working raids and going after the employers who are exploiting migrant workers. हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो आजकल जो रिसेंट बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है कि अमेरिका जो इलीगल लोग हैं उनको पकड़ रहा है, उनकी कंट्रीज में वापस भेज रहा है। काफ़ी दिन से जो न्यूज़ है बहुत वायरल चल रही है। अब अमेरिका की तरह ही यूके से भी जो सेम न्यूज़ है वो आने लगी है। यूके गवर्नमेंट ने कुछ रिसेंट वीडियो शेयर करी है, कुछ रिसेंट डेटा शेयर करा है, जिसमें कि बताया गया है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह पे रेड करी गई। एक डेटा पब्लिश करा गया जिसके अकॉर्डिंग 800 से ज्यादा जो रेड्स थी इन द मंथ ऑफ जनवरी करी गई और 600 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया। इसके अलावा अलग अलग जगह बताई गई कौन सी जगह पे रेड करी गई, एंड काफी वीडियोस भी सामने आ रही हैं अलग अलग जगह से जिनकी रेड करी गई। तो आज की वीडियो में इस सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप कर रहे हो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट फॉरेन लाइफ, फॉरेन वीजास एंड करंट अपडेट। तीनों चीजों की जो इन्फॉर्मेशन है टाइम टू टाइम इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। डू सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। कुछ दिन पहले यहाँ पे जो एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है स्काई न्यूज, उनकी तरफ से आता है ये आर्टिकल। इस आर्टिकल में मेंशन करा गया कि यूके में द मंथ ऑफ जनवरी 800 से ज्यादा जो रेड्स थी जो यहाँ पे इन्फोर्समेंट टीम है उन्होंने करी, एंड 600 से ज्यादा जो लोग थे उनको पकड़ लिया गया। आर्टिकल में काफी जो फिगर्स थे और भी शेयर करे गए। इस आर्टिकल में एक वीडियो भी शेयर करी गई जिसमें कि ये दिखाया गया कि कैसे जो इन्फोर्समेंट टीम है वो अलग अलग जगह पे रेड कर रही है। तो सबसे पहले आप ये वीडियोस देखिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। Under the cover of darkness, immigration officers and police move into this large agricultural business in North Wales. No one up there? No, I'm in touch. They're on the hunt for immigrants working here illegally. And it doesn't take long to find their first suspect. On you now. The man they've detained is a Romanian national. What's your permission to be in the UK? You got a visa to come to the UK? For several years after Brexit, EU citizens enjoyed a grace period when authorities didn't prosecute those working here unlawfully. But now, if they breach the rules, they're treated like any other illegal immigrant. What visa have you got? Work visa? For 6 months, yeah. 6 months? Visit visa? Yes. Okay. Right. You're not allowed to work with that, okay? So at the moment, okay, you're under arrest, okay? For breaching the conditions of your leave to remain in the UK. Do you understand? As fellow officers search for other suspects, the Romanian has walked back to his accommodation on the site for further checks. Anybody else in your caravan? Inside a cluster of caravans, more suspects, all Romanian, are being questioned. Where is your passport? Officers told me they see very significant numbers of Romanians and Bulgarians in particular abusing UK immigration rules to work here illegally. An increasingly popular means of arrival is through the common travel arrangement with Ireland, and some of those detained here may well have come through that route. तो गाइस, जैसा कि आपने वीडियोस में देखा बहुत अलग अलग जगह पे जो रेड्स है हो रही हैं। अब बात करते हैं उन फिगर्स की, उन डाटा की जो कि इस आर्टिकल में मेंशन करा गया है। आर्टिकल में सबसे पहले तो जो फिगर है वही दिए गए हैं कि कितनी रेड्स हुई। इसके अलावा इसमें मेंशन करा गया है कि जो रेड्स थे वो 73% इंक्रीज हो गई एज कम्पेयर टू प्रीवियस
ईयर जितनी रेड यहाँ पे लास्ट ईयर कंजर्वेटिव पार्टी के साथ हुई थी उससे ज्यादा जो रेड्स थी अब जो है नई लेबर पार्टी कर रही है। 73% जो मोर रेड्स है वो करी गई। तो यहाँ पे ये भी डाटा शेयर करा गया है कि जो लास्ट ईयर इस टाइम तक जो रेड्स करी गई थी वो करी गई 556 जो रेड्स थी, जो विजिट थी अलग अलग जगह पे करी गई, जिसमें से ओनली 352 लोगों को पकड़ा गया था। पर इस टाइम पे अब जो नंबर है वो ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया है। आर्टिकल में मेंशन करा गया है कि इलीगल इमिग्रेशन यूके गवर्नमेंट के लिए एक मेन जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक था उनके वोटर्स के लिए, क्योंकि यूके के जो नेटिव वोटर्स हैं उनका जो एक बहुत बड़ा कंसर्न था वो यहाँ पे इमिग्रेशन को लेके था, और उससे भी ज्यादा इलीगल इमिग्रेशन के अगेंस्ट काफी लोग यहाँ पे जो आवाज है वो उठा रहे हैं। इसके अलावा आजकल भी काफी जो रैलीज है वो चल रही है इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ। काफी जो रैलीज है टाइम टू टाइम देखी जाती है कि इलीगल लोगों को यहाँ से निकाला जाए। तो यूके गवर्नमेंट भी इस चीज को लेके बहुत ज्यादा फोकस हो रही है, क्योंकि एट द एंड गवर्नमेंट बनने के लिए वोट्स चाहिए, एंड वोट्स के लिए जो लोग चाहते हैं गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं वो चीजों को फॉलो करना ही पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट बनी है मई तक, पहले कंजर्वेटिव पार्टी थी, मई के बाद लेबर पार्टी यहाँ पे रूल में आती है, से लेबर पार्टी रूल में आई है, उस डेटा को भी पब्लिश करा गया है। तो एज पर दिस डेटा यूके में जो है 3930 लोगों को अरेस्ट करा गया, जिसमें कि 5424 जो विजिट थी वो इन्फोर्समेंट टीम की तरफ से करी गई। मतलब कि ऑलमोस्ट जो 5500 जो रेड्स थी अलग अलग जगह मंथ ऑफ जुलाई से करी गई है, एंड इसमें अप्रोक्सीमेटली 4000 लोगों को अरेस्ट करा गया है जो कि इलीगल एक्टिविटी करते पकड़े जाते हैं। इलीगल एक्टिविटी यहाँ पे अलग अलग तरह की आती हैं कि कुछ लोग यहाँ पे लीगल स्टेटस पे होते हैं पर वो इलीगल वर्क करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे इलीगल स्टेटस पे होते हैं वो वर्क करते हैं। किसी भी जगह पे कोई भी ऐसे वर्कर पकड़े जाते हैं तो उनको सबसे फर्स्ट प्लेस पे अरेस्ट कर लिया जाता है। तो डिपोर्टेशन बाद का जो प्रोसेस है, सबसे पहले अरेस्ट करा जाता है एंड चेक करा जाता है बैकग्राउंड वगैरह प्रॉपर्ली, एंड उसके बाद अगर कोई प्रॉपर्ली यहाँ पे इलीगल है या ऐसा कुछ है तो उसको डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। यहाँ पे प्लेसेस भी मेंशन करी गई है कि कौन से प्लेसेस में जो कंटिन्यूसली रेड्स है वो करी गई है। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा कॉमन है जिनमें की रेड्स आए दिन होती रहती है, काफी वीडियोस भी इसके बारे में आती है। इसके अलावा कैफेज हैं, अलग अलग कैफे कॉफी कैफेज जहाँ पे हैं उनमें भी जो रेड्स है टाइम टू टाइम करी जा रही है। इसके अलावा कार वॉशेस है, कार वॉशेस के रेड की वीडियोस भी जो कुछ मंथ पहले है यूके होम ऑफिस अपने ही पेज पे जो थी वो पब्लिश करी। नेल बार्स जो होते हैं जिसमें कि नेल आर्ट वगैरह का काम करा जाता है वो, एंड साथ में अब बेब शॉप्स, जो बेब्स यहाँ पे सेल होते हैं, यहाँ पे बेब्स बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत कॉमनली यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। यूके में लोग वेब यूज करते हैं। वेब शॉप के रिगार्डिंग यहाँ पे एक और डेटा जो है वो आर्टिकल में जो है बताया गया है। जो रेड हुई थी जनवरी में उसमें 10 लोग जो इलीगल वर्कर्स थे उनको पकड़ा गया। उसके साथ में जो 2 लोग ऐसे थे जो कि क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनको पकड़ा गया। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में जो रेड्स है कंडक्ट करी जा रही है। तो यहाँ पे सिर्फ लोगों को अरेस्ट ही नहीं करा जा रहा, तो यहाँ पे एक जो फिगर है ये भी शेयर करा गया है कि इन सारी रेड्स में जो पकड़े गए उनमें 19,000 लोगों को उनको डिपोर्ट कर दिया गया। तो डिपोर्टेशन का नंबर एज कंपेयर टू अरेस्ट बहुत ही कम है, क्योंकि अरेस्ट जैसे मैंने पहले बोला कि हर किसी को कर लिया जाता है जो कि यहाँ पे इलीगल रहते हैं, इलीगल वर्क करते हैं पर उनके पास लीगल स्टेटस होता है, तो उनको काफी चांसेस ये होता है कि फाइन वगैरह लगा के छोड़ दिया जाए। पर जो कि यहाँ पे इलीगल होते हैं, जिनका स्टेटस ही इलीगल होता है, उनको तो कोई भी लाइक ऐसा प्रूफ वगैरह नहीं मिलता, तो डेफिनेटली उनको जो डिपोर्ट है कर दिया जाता है। तो डिपोर्टेशन को लेके भी जो वीडियोज है सामने आई। Early morning in late January, footage released by the Home Office shows almost 50 people being loaded onto a government deportation flight. Half are foreign national offenders, and some who pose a higher risk have been restrained as they're led on board. Ministers will shoulder some internal criticism over this approach if it means hanging on to wavering voters. Eyes already on the next election and the political threats on the horizon. Rob Powell, Sky News in Westminster. इसके अलावा यूके गवर्नमेंट के क्या फ्यूचर प्लान है इस आर्टिकल में कुछ वो भी मेंशन करे गए हैं। तो यहाँ पे जो एक मेजर प्लान है इन द मंथ ऑफ मार्च, अगले मंथ ही आएगा, तो मार्च में यहाँ पे यूके में एक बॉर्डर सिक्योरिटी समिट जो है होने वाला है। तो इस बॉर्डर सिक्योरिटी समिट में 40 कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट करने वाली हैं। तो इस समिट का जो मेन पर्पस है वो यही होगा कि बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके जो डिस्कशंस है होंगी, और इसके अलावा जो भी इलीगल माइग्रेंट्स हर कंट्री में जाते हैं थ्रू बॉर्डर क्रॉसिंग, उसको लेके भी जो मेजर टारगेट है करा जाएगा, उस चीज को डिस्कस करा जाएगा। तो इसमें यूरोपियन कंट्रीज है एंड काफी और कंट्रीज भी आएंगी
करेंगी एंड जो 40 कंट्रीज है मिलके इसका कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगी। तो ये नेक्स्ट मंथ ही है, ये तो होने वाला है। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीक के बाद जो एक और यहाँ पे चीज होने वाली है वो ये है कि यूके गवर्नमेंट जो उनका बिल है बॉर्डर सिक्योरिटी असाइलम एंड इमिग्रेशन जो बिल है वो उसको डिबेट के लिए हाउस ऑफ कॉमन में जो लाएगी। तो इस पे जो डिबेट है होगी, यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन में पार्टीज के मेंबर है वो इस चीज पे डिबेट करेंगे कि क्या ये सही है गलत है, क्या चेंज होना चाहिए क्या नहीं चेंज होना चाहिए। तो ये बिल पास होता है कि नहीं ये तो उस डिबेट के बाद ही पता चलेगा। पर इस बिल के अगेंस्ट जो कंजर्वेटिव पार्टी है जो कि पहले रूलिंग पार्टी थी अब नहीं है, उन्होंने यही बोला है कि ये बिल टोटली जो यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं उनको सपोर्ट करेगा, क्योंकि इस बिल को अगर इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा तो जो भी लोग यहाँ पे इलीगल आके असाइलम क्लेम करते हैं उनको ILR मिलने का रास्ता बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि जो नई गवर्नमेंट है वो इसे वापस लाना चाहती है, जो पहले वाली गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको कैंसिल करा था, स्कीम लाई थी। जब नई गवर्नमेंट आई उन्होंने पहले ही बोला था अपने जो उनका मैनिफेस्टो था कि वो रवांडा स्कीम को कैंसिल करेंगे, तो रवांडा स्कीम कैंसिल हो गई, जिसके कारण जो पहले वाली कंजर्वेटिव पार्टी है वो यही बोल रही है जो पहले हमने स्कीम लाए थे वो सही है। क्योंकि अगर जो इनका नया बिल है वो पास हो जाता है तो उसका बहुत बड़ा जो बर्डन है वो जो है यहाँ पे टैक्स पेयर है उन पे पड़ेगा। फिर जो इलीगल लोग हैं जो कि यहाँ पे इलीगल तरीके से आते हैं वो भी ILR के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये बिल पास होता है कि नहीं होता है ये तो बाद की चीज है, पर इस बिल के लिए अलग अलग पार्टीज के अलग अलग टेक हैं। तो गाइस ये कुछ मेजर ऐसे अपडेट थे जो कि रिसेंटली देखे गए हैं इलीगल इमिग्रेशन को लेके। काफी जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रिक्ट है, काफी रेट्स करी जा रही है कि जो होम सेक्रेटरी है बाइटी कूपर वो भी टाइम टू टाइम मेंशन करती रहती है कि इलीगल लोगों को पकड़ना उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि इनका बर्डन उन लोगों पे भी पड़ता है जो कि टैक्स पेयर है, जो कि एक्चुअली में जॉब करते हैं। इसके अलावा बाइटी कूपर ने यह भी बोला है कि ये लोग अपनी जान को खतरे में डाल के थ्रू वोट्स या फिर इन सारे तरीकों से यूके में एंटर करते हैं, तो ये उनके लिए भी सेफ नहीं है, हमारी कंट्री के लिए सेफ भी नहीं है। तो उनका जो मेजर कंसर्न है वो यही है कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और इस देश से बाहर निकाला जाए। Really needs to be respected and enforced for the asylum and immigration system to work. That's why since the election we have been increasing returns, so 19,000 people who have no right to be in the UK have now been returned, and also increasing the illegal working raids and going after the employers who are exploiting migrant workers. तो गाइस ये कुछ ऐसी रिसेंट अपडेट्स थी जो कि इस टाइम पे सामने आ रही हैं। तो होपफुली आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका स्टिल कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक में वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है वो भी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, पेज भी लाइक कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसपे कि मैं कुछ ना कुछ ब्लॉग डालने की कोशिश करती रहती हूँ जो कि ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेटिव ही रहेगा। तो गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।